हाँ मैं क्या भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई होप आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड ऑफ 2022, नॉट द लास्ट एपिसोड. और या काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है. एवर सिंस वी टच्ड 100K, उसके बाद 110 यूँ हो गए, विच इज़ ग्रेट. दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर रेजोनेटिंग. आई थिंक इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो लोग क्लिप्स काट के इधर उधर लगा देते हैं. And then like people are curious कि ये जुनेद भाई की कौन सी वीडियो थी, because a lot of people are not familiar with this channel. तो फिर वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं and then they find out. A lot of people reached out. Somebody I have worked for, he reached out to me. काफ़ी अच्छे साहब है. तो उनका आया in like he just discovered this channel. He's like, I'm binge watching. That's great. And the idea is that, like, you know, a lot of people are getting helped, and that's the best part about it. So yeah, free therapy perhaps. No, I'm not a therapist, never claimed. Disclaimer हमेशा आता है. और yeah, बाकी ये कि if you haven't subscribed yet, you can do that, and you can support this channel on patreon.com/ganjiswag. Without further ado, we'll move to the first question. The first question says, I have a crush on my teacher. It's from a girl. Assalamu alaikum Junaid bhai, I'm writing this email to you as I started to develop feelings for my teacher. I'm an A-level student and I'm in my late teens. I started my A-levels last year in August. When I started my A-levels, I noticed my teacher to favor me. Moreover, I could notice that he used to get angry whenever I was hanging out with my guy friends, or I used to talk to my guy friends during the class. My friends noticed that too, that my teacher gradually became hostile towards my guy friends, especially if they asked me anything during the class. He would ask them to leave the class or insult them in front of 20 other students. Toxic. My guy friends also notice that he only reacts that way when I am talking to them and not my friends who are girls. अच्छा दूसरों की नहीं करता. He tries to get close to me and stand close to me. Sometimes also brushes his arm or hand lightly with my arm or my back while he passes by to other students and address this question. I also notice that Sir usually checks my paper and assignments very leniently compared to other students, where I end up scoring the highest marks in my class, although I'm a straight A student. Sometimes when my friends compare their answers with mine, they are almost similar, but I'm awarded more marks in those answers. The point is, he's married and he's middle-aged, plus has 4 or 5 kids. 2 of his daughters are going to university, would be graduating next year. He's very nice towards me and gets very possessive around. He also doesn't let me sit with my guy friends or let me talk to them during the class. Also, he would change my place in the class, like he would pick my bag and put in front seat where I am visible to him. What the fuck, man? And he can stare at me comfortably. He used to help me out in my tests too and helped me a lot during my mock examinations. I used to get really uncomfortable in the start by his actions and thought of reporting him to the school, but the thing is, he's an A-levels teacher at so and so school and nobody would believe me, and even if they believed me, they would not fire him as he's a highly qualified teacher. All of my friends know about this, asked me to ignore him. Unfortunately, I've started to like him. And if he doesn't do that stuff, which he does usually, I feel insecure and left out. It's been more than a year since all of this is happening to me, and I've kind of become attached to it. Finally, it's October. He sometimes acts warm towards me, and sometimes he gets cold towards me. Please advise me, or what should I do other than changing school, because I asked my parents to change my school, but they didn't listen. Only 6 to 7 months are left and I would be completing my A-levels in May, June. And I have applied abroad and got accepted in a so-and-so university. So I would be going to Europe to study in September as my session starts in September. Please pray for me and guide me. I've fallen for that man and I know it's wrong. Thank you so much for your time and sorry for being the long email. खैर, दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रिमिनल एक्टिविटी. देखिए, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनका एक एथिकल कोड होता है जिसको इनको फॉलो करना होता है. दिस इज स्ट्रेट अप. आई मीन, इफ ही इज टचिंग यू लाइक दैट, ही इज स्ट्रोकिंग हिज हैंड ऑन योर बैक लाइक यू सेड, दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी एंड ही शुड बी जेल्ड फॉर इट. बट चूंकि ये पाकिस्तान है, आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. यू शुड रिपोर्ट हिम. एंड अगर आपको लगता है कि जी वो सो एंड सो जो आपने स्कूल का नाम लिखा है, तो मैं समझ गया हूँ कि वो क्या सीन होगा.
at least protest about it. Do not. Why are you having a crush on? This is a creep activity. लड़कों को बाहर निकाल देना, जेलस फील करना. आई मीन व्हाट इज ही अ किड और समथिंग? 4-5 बच्चों का बाप है. उसकी बेटियां, आपने खुद कहा कि वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने वाली, यानी आपसे बड़ी उनकी बेटियां हैं. सो आई एम अज्यूमिंग दिस गाय इज इन हिज लेट 40s और इवन 50s. मैन, दिस इज सो क्रिमिनल. ये हॉट एंड कोल्ड जो खेल रहे हैं, आई मीन बेटा, यू आर एट अ वेरी वेरी टेंडर एज एंड आपको इन चीज़ों की समझ बूझ नहीं होगी. तो ऑब्वियसली व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ ही इज़ मैनिपुलेटिंग यू इन अ वे टू फॉर यू टू लाइक हिम एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस. एज आपने जो ईमेल लिखी है, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली क्रिमिनल बिहेवियर. टीचर्स जो होते हैं वो बाप सम्मान होते हैं, वो माँ सम्मान होती हैं. टीचर्स के साथ आप कहते हैं ना, रूहानी वालदैन होते हैं. तो अगर कोई वालदैन किसी बच्चे के साथ ये हरकत करे, और इस तरह की हमने ईमेल्स पहले भी पढ़ी हैं अपने शो पे, दिस इज़ एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल. तो दैट मीन्स अब आप ये सोचें कि जो लोग सुन रहे हैं, इस जहनीत का टीचर, और ये एक नहीं, इस तरह के बहुत हैं. हमारे पास भी टीचर्स आते हैं हमारे एजुकेशन चैनल के लिए. उनमें से एक तो मेरे दोस्त भी हैं. वो ख़ुद ये चीज़ बताते हैं कि ये एक बहुत प्रेवलेंट इशू है अमंग द टीचर्स. यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, अब जाहिर है टीचर एक सर्टन एज के होते हैं. अब आपके पास एक पोजीशन ऑफ पावर है जिसमें आप अगली का फ्यूचर बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं. तो उसमें सम पीपल टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर ओन स्टूडेंट्स लाइक दैट. लड़कियां यंग होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, इतना उनको एक्सपोजर नहीं होता, या वो डरती हैं, सहमती हैं. बहुत सी लड़कियां ये सोच के रिपोर्ट नहीं करती कि हमें ही यूनिवर्सिटी से उठा लिया जाएगा, तो वो कहती हैं चलो पढ़ना है. बहुत सी लड़कियां जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. मगर वो यही सोच के रिपोर्ट नहीं करती, घर वाले घर बैठा देंगे, उनको नौकरी करनी है, करियर में एक्सेल करना है, तो सह लेती हैं. विच इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट. फिर स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह होता है. सो द टीचर इन क्वेश्चन दैट आई वाज स्पीकिंग टू, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई कि ये बहुत प्रेवलेंट इशू है और बहुत सारे लोग अननोटिस चले जाते हैं बिकॉज बच्चे ज़ाहिर है डरते हैं. बेटा, दिस इज़ आई डोंट नो, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, बट लाइक दिस कुड एक्चुअली डैमेज योर पर्सनैलिटी लेटर ऑन. तो सो लाइक बी वेरी वेरी केयरफुल. डू नॉट फॉल फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को टीचर की ही नज़रों से देखें. डू नॉट ट्राई टू इन्वॉल्व फीलिंग्स. एंड लाइक अगर अगला अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर. अगर कुछ स्टूडेंट्स जिस तरह के होते हैं, अगर उनको लगता है कि ओ दे हैव अ फ्यूचर विद देयर टीचर, ऐसा कोई सीन नहीं है. कोई अपने बच्चे छोड़ के अपनी स्टूडेंट्स, केसेस होते हैं, हर तरह के हो जाते हैं, बट लाइक प्लीज़ वो ख्वाबों का शहज़ादा ना बनाएगा अपने टीचर को. देर ओनली एक्सप्लॉइटिंग यू फॉर देयर ओन मीन्स एंड फॉर देयर ओन प्लेजर. और दे हैव अ पोजीशन ऑफ पावर जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करते हैं. और ये सिलसिला, अब आई एम प्रीटी श्योर यू आर नॉट द फर्स्ट वन. ये हर साल का इनका होगा, और इस तरह के कितने स्टूडेंट्स ऐसे गुजरे होंगे. एंड इट्स जस्ट वेरी शेमफुल कि लोग अपने प्रोफेशन के साथ इतनी बददियानती करते हैं, और वो भी इतना नोबल प्रोफेशन जहाँ पे आप एक कौम का फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपकी जब नज़रें इतनी गंदी हो. इट्स लाइक अगर कोई खातून ब्रेस्ट एग्ज़ाम के लिए गई है, इफ़ शी इज़ अगर मैमोग्राम के लिए गई हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए की स्क्रीनिंग के लिए गई हैं, तो अगर डॉक्टर की आंख में वो पर्दा ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है. और यही वजह थी दैट एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कि एक डॉक्टर ने अपनी पेशेंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, कराची का वाक़या, और फिर बहुत शोर शराबा भी हुआ था. उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अगर एक ख़ातून अपने गायनोकोलॉजिस्ट को, अभी आप सोचें ना कि जब हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर वहाँ खुदा ना खास्ता गलती से अगर कोई रश वाली जगह है, ये है, अगर आपका हाथ अनजाने में किसी खातून को टच हो जाता है, तो उनको फ़ौरन करंट लगता है, ज़ाहिर है, बिकॉज उनका गार्ड हर वक्त अप होता है, वो हर वक्त अलर्ट मोड में होती है कि कोई, क्योंकि ये बहुत होता है. बट वही औरत जब गायनी के एग्ज़ाम के लिए डॉक्टर के पास जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. वो जो है उनका फिज़िकल एग्ज़ाम होता है, जेनिटल एग्ज़ाम होता है, मेमोग्राम होता है, हर चीज़ होती है, हर किस्म की स्क्रीनिंग.
आप सोचिए वही औरत जो बाहर बाजार में है इतनी अलर्ट, वहाँ जाके इतनी कंफर्टेबल क्यों होती है? क्योंकि उसको पता है कि जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है उसकी आंख में पर्दा है। वो एथिक्स की किताब पढ़ के आया है जिसमें उसने उसको जज नहीं करना, उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करना है। इसीलिए women आर मोर कंफर्टेबल विद डॉक्टर्स एज अपोज टू एनी अदर गाय आउट इन द स्ट्रीट। यही सिलसिला लॉयर के साथ भी होता है और यही सिलसिला टीचर के साथ भी होता है कि वो आपको जज नहीं करते और वो आपको एक सर्टन पोजीशन से और एक सर्टन एंगल से आपको ऑपरेट करना उनको चाहिए। कुछ लोग अपना ये कोड ब्रेक करते हैं, जिस तरह उस केस में हुआ, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई तो तभी शक व शुबहात होते हैं कि यार आई ट्रीटेड यू लाइक अ डॉक्टर, वर यू नॉट ट्रीटिंग मी लाइक अ पेशेंट, आर वी फ्रेंड्स नाउ जस्ट बिकॉज आई सी यू, you know. It's like I go to therapy every week, okay, and my therapist and I have a very strong code, कि if we ever come across each other in public, I don't know her, she probably knows me, कि oh yeah, I've seen your videos, that's it. We will never disclose, I will never disclose who she is, she will never disclose, क्योंकि ये एक pact है. Because when I go to her, I tell her everything about me, she knows insides outs about me. If she writes a book, that'll be a great book deal though, but she won't, because I know, I trust her. क्योंकि उसने जो पढ़ा है उसका मकसद ही यही है कि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे लोग सोचते ही नहीं है, पेशेंट्स के साथ लोग वीडियोस भी बना रहे होते हैं, एंड दैट्स नॉट, दैट्स वेरी अनकॉल्ड फॉर। खैर, टू ईच देयर ओन। एनीवे, तो so the reason why I'm able to open myself up in every way possible in front of that person is because I know that person is trained not to judge me, and they don't. और फिर अगर यही friend request आ जाए and suddenly we become friends, I'm like, okay, we can't be friends because you know so much about me that you're not supposed to. आपके हर दोस्त को हर चीज़ नहीं पता होती, right? आपका एक वर्जन होता है जो सिर्फ आपको पता होता है, या फिर आपके थेरेपिस्ट या डॉक्टर या लॉयर को पता होता है। सो या बेटा, दिस इज़ अ वेरी अनचार्टर्ड टेरिटरी, इसमें आपको नहीं पढ़ना। अगर आप स्कूल चेंज नहीं कर सकती, 6-7 मंथ्स रह गए हैं, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स, कि अब वो यही बोलेंगे 6-7 महीने तो रह गए, गुजार लो यहाँ से। सो लाइक ट्राई टू बी लाइक वेरी वेरी प्रूडेंट अबाउट दिस, एंड प्लीज़ मेंटेन योर डिस्टेंस। बट देन आई नो योर सिचुएशन कि अगर आपने डिस्टेंस शो किया, इफ़ यू बिकम कोल्ड, आपके मार्क्स ही ना कम कर दें, आपके मार्क्स कम होंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। बट खैर, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। आपका ए लेवल्स का एग्ज़ाम है तो स्कूल के एग्ज़ाम डजेंट मैटर। try to evade this, but if you can, report this, and please have your students stand by your side who can vouch for you, क्योंकि फिर वो ना ऐसा ना हो कि आप जाके कंप्लेन करो और बाकी अपने ग्रेड्स के लिए डर जाएं, एंड देन देयर लाइक सॉरी हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, देन दैट विल मेक यू लुक रियली बैड, and then that can cause you a lot of trouble. So like gather your friends, get them in confidence, and like tell them that you're uncomfortable about this, and then please report this to your school. I'm sure जिस स्कूल का आपने नाम लिखा है उनकी कुछ तो पॉलिसी होगी इन मामलात में, नहीं भी होगी, वर्स्ट केस सिनारियो एटलीस्ट टीचर को तो ये तो हो जाएगा कि यार अब मेरी शिकायत हो सकती है, तो अब वो शायद डिस्टेंस मेंटेन करे। बट प्लीज़ डू नॉट अलाउ दैट क्रीप अराउंड यू और टू टच यू द वे ही डज। आप अभी बहुत छोटी हो, आपको भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, दीज थिंग्स कैन डैमेज यू रियली रियली बैड लेटर ऑन। अपना प्लीज़ ख्याल रखो, and be very very vigilant about your surroundings, and be very firm in your tone. वो टीचर ही हैं, worst he can do is he can fail you, but he can't take your life or anything. और ये जो जितना ये कबीर सिंह वाला बिहेवियर है कि लड़कों को डांट रहा है, क्लास से बाहर निकाल रहा है, stand up for yourself, because you need to learn to stand up for yourself. If you don't do it today, you will never do it later on. Like I said before, this is an unacceptable behavior from your teacher, and this should be punished, and he should go to jail. But like this is very unfortunate. So please अपने दिल से इस तरह की फीलिंग्स निकाल लें। आपने वैसे ही 6 महीने बाद इंग्लैंड चले जाना, फिर आपने क्या इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस खेलना है? हल्ली वल्ली उनके पास अगले स्टूडेंट आ जाएंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली द ट्रेंड माइट कंटिन्यू, इट माइट नॉट कंटिन्यू इफ़ यू रिपोर्ट दैट गाय। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, एंड बट अपने दिल से इस तरह की फीलिंग्स निकाल लें कि वो ये बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो सबके साथ ऐसे ही होते हुए होंगे और अभी आपके साथ है, फिर अगले साल कोई और, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बट इन लोगों का these people need to stop, need to be stopped.
तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ हैव सम करेज एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ठीक है? फीलिंग्स निकालने अपने दिल से, ये गलत बात है, ठीक है? थैंक यू। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लीथल क्रॉस ऑफ वीड एंड पुप्पो। लाइक दिस, लाइक द weirdest title I've ever heard. Salam Junaid Bhai, first of all, I would like to appreciate your efforts towards the innovation you're bringing in our education system. May Allah help you in achieving your vision. Thank you. I'm writing this email to you as I've been in a hangover caused by a lethal cross of weed and puppo. Alhamdulillah, I come from a very privileged background. After completing my A levels in 2019, I went to London for my bachelor's in global business management, and previous summer I graduated with a distinction in my program. My family has been in retail business for 65 years now. Later in the 2000s, my family diversified its group into various sectors, mainly into real estate development. Now we have a well expanded retail sector and certainly a good amount of commercial buildings in central parts of Lahore. During my years in London, I really adjusted well there. I had a very good student life. During my fourth semester, I started selling textile goods from Pakistan on Amazon Marketplace with my brother-in-law, who's a national in UK. It was a great experience for me. I made the sales of 77,500 pounds in just 3 months. Wow. I already was getting monthly allowance from my father, and after having this much money and being a bachelor in London, I got into stuff I shouldn't have. Got into weed, drugs, and gambling. Unfortunately, lost a lot in gambling, playing roulette. I lost 9,500 in a single night at Genting Casino, Edgware. I've seen that. Got really adjusted into this life and wanted to do something there. Meanwhile, the family business got divided into my father and his brothers. So as soon as I graduated, my father brought me along with him after convocation to Lahore to help him out as everything's been divided. Being the eldest son, my parents expected me to join my father in his business, due to which I joined him a few months ago. He was happy with my work there. I looked after accounts and the marketing department. And for the side hustle, I'm still working on Amazon Marketplace in the targeting market of Europe and UK, which is doing good. Unfortunately, I had opted a habit of consuming weed. I've been consuming it for years now. I have never let this thing come into my work and have kept my priorities in check, due to which I'm at work for most of the day and have been working out for some time now, due to which I have restricted weed to only before sleeping. Recently, a cousin of mine, my puppo's son, got to know about it, and before coming to me, as we had a very good communication between us, he went straight to my dad, to my dadabu. I don't understand why he would do that unless he's jealous of the position I'm in, and that he's just a worker at the company where I'm technically the boss. Which I do realize I wouldn't be here if I weren't the son of my father, due to which I tried to stay humble as much as I could. After hearing that, my grandfather asked him to keep it to himself and summoned me upon this and just asked me to quit and nothing else. I tried quitting, but it's just that after a very long day, I just can't help myself to smoke, as it really helped me to relax. I did quit for a few days, but I just couldn't sleep, due to which I started again, but I restricted only one joint before sleeping. After that incident, the office or anywhere, I really didn't make any type of contact with the cousin. Everything went well. One day I went home after the gym, and during the dinner my mother just randomly said, "Nashe karne lag gaye ho tum." I hesitated at first, and then later at my mother showed me a WhatsApp chat with my chachi where she said ABC Baji came here and told that I've gotten into hardcore drugs, to which my father really got upset and didn't talk to me for quite a few days. And this thing has spread now all over my family, to which my parents really got upset with. A week passed, and there's not even a single relative who haven't called my parents, given their opinion on their matter. Fuck them, man. When I know that things they themselves are involved in. And my father have now asked me to either leave the weed or leave the country with the inheritance and do whatever you want to do, to not cause any more izzat pe daag. Due to this toxicity, I left for Islamabad and I'm currently living here. Pupo also came to my place and suggested my father that he can rely the work. Oh, मेरे बेटे को लगा दो. Okay. So I was right the whole time. These people can't do shit themselves and just have eyes on others' earnings. All my life, my father
and my Taya have looked after the Pupo's family, and still they aren't full of being fed on others. I really want to leave the country because of these people, but I just don't want to leave my parents behind. I do want to quit weed. I'm even trying to, but I know even I did now, no one's going to believe it. Huh. I just need your suggestion. Which path should I choose? Because if I do live here, I'm not going to let that bloody simp work in my office and would really close all the charity we've been giving them for years now, which would cause more drama. And if I walk away, I'll be mentally at peace because no one here regard me with the same respect that I used to get. I've thought of going back to London for masters and continue with Amazon, start my own startup there. I can't clear my head up. It's full of crap due to which I'm not able to make a decision. Just need your suggestion. What would you do if you were in this position? What would I do? I would fucking take a revenge, but like not now, 15 saal baad, because that's how I operate. People think I forget and that I've forgiven, but I don't. I normally operate at a level where आप अपने आप को उस लेवल पे ले आओ जहाँ अगले को आपकी नीड हो. खैर यहाँ तो ऑलरेडी वो आपकी नीड पे पल ही रहा है, मगर उसके और आपके गोल्स अलाइन हो जाएं. दिस इज हाउ आई ऑपरेट. वर्क सो हार्ड कि अगले के लिए आप मजबूरी बन जाओ, एंड देन उसके लिए कोई और रास्ता ना हो, एंड देन यू हैव द लास्ट लाफ. बहुत चेहपरे की हरकत है उसके आपके कज़न ने जो की है. बट इफ़ यू गो एट हिम कि जी ये खुद शराब पीता है या फिर ये जो है लड़कियां घुमाता है, जो करता है वो करता है, फिर वो आप और वो एक लेवल पे आ जाएंगे. यू हैव टू स्टे अबव ऑल दिस शिट. अब जस्ट बिकॉज योर पुप्पो एंड योर कज़न आर स्टूपिड एंड टॉक्सिक डजंट मीन यू नीड टू लीव योर पेरेंट्स. हाँ, अगर आपको वैसे ही मास्टर्स करना है and because you've already lived in London and you've done that, तो वो एक अलग बात है, and you have the Amazon thing going on for you, and I think that's great. That can fund your masters. और एक और डिग्री लेना में कोई हिमाकत नहीं, उल्टा आप कुछ सीखोगे, टॉक्सिसिटी से भी दूर हो जाओगे. मगर किसी से डर के नहीं भागना. इफ़ यू रियली वांट टू डू मास्टर्स, गो फॉर इट. आई वुड encourage you for doing that, बट इस वजह से नहीं कि यार मैं इनको फेस नहीं करता. फक देम, फेस देम इन देयर फेस. डर के नहीं भागना होता, कभी भी नहीं भागना होता. और पीपल कैन से व्हाट दे वांट टू से, पीपल कैन बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव कि भाई ये हीरोइन भी करता है, ये भी करता है, वो करता है. स्क्रू देम. डोंट लेट देयर बुलशिट अनॉय यू, बिकॉज व्हेन यू गेट अनॉयड यू दैट मीन्स कि दे हैव पावर ओवर यू. You have to become bulletproof बेगैरत if you want to survive in this country and in this खानदान वाली politics. असर ही नहीं करती, फील ही ना करो. हाँ, पेरेंट्स रिजेंटमेंट करें तो वो ज़ाहिर है फील तो होती है, बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. थिंक इट फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट कि यार आपके पेरेंट्स जो है ना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखो यार जो दूसरों की बातों में आ जाए और अपनी औलाद के लिए स्टैंड ना ले तो बुद्धू ही होता है ना वो. और बुद्धू लोग भी बड़े होते हैं और फिर वो प्रोक्रिएट करके पेरेंट्स भी बन जाते हैं, बट वो बुद्धू तो होते हैं ना. मैं आपके पेरेंट्स को नहीं कह रहा, मैं जनरली ये कह रहा हूँ कि हमने ये समझा हुआ है कि ओ जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स तो अब वो सही हैं, उनके पास कोई नुस्खा कीमिया आ गया है, एलिक्सर ऑफ लाइफ आ गया है, एंड दे विल ऑलवेज बी राइट. ऑफ कोर्स नॉट. दे आर जस्ट एज ह्यूमन एज एनी वन आउट देयर. तो अगर तो वो आपको छोड़ के दूसरे पे बिलीव करे तो बोलो भाई फिर उन्हीं को पाल लें, मैं क्या करूँ फिर. ठीक है, लाइक बट टेक अ स्टैंड. बोलो हाँ ठीक है, आई गॉट इनटू दिस हैबिट और ये ऑब्वियसली इट्स बैड. आई एम नॉट सेइंग कि ओ ये अच्छी है या इट हेल्प्स मी फील गुड या मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ या मेरा लाइफस्टाइल नहीं है. ऐसे लोग भी होते हैं कि वो भाई उसके बगैर चलते नहीं हैं, वीड के बगैर, जॉइंट के बगैर चलते नहीं हैं, और दे कांट फंक्शन. तो एटलीस्ट दैट्स नॉट द केस फॉर यू. इफ़ इट हेल्प्स यू. मेडिसिनल भी एक चीज़ होती है ना, बट यहाँ पे इन चीज़ों को माना नहीं जाता. ओ भाई जुनेद भाई कह रहे हैं वीट पियो सारे सोने से पहले. भाई खल्ली वल्ली दुनिया जो है वो CBD और पता नहीं किस किस चीज़ों में जा रही है. इफ़ इट रिलैक्सेस यू, इट रिलैक्सेस यू. भाई हार्ड ड्रग्स थोड़ी है, दिस इज़ नॉट क्लास ए ड्रग. मगर यहाँ पे अब ये बात करो फिर लोग कल को पोस्टर निकाल लेंगे, फिर कोई बैठ जाएगा कि जी ये कह रहे हैं चरसे पियो और ये शराबें पियो. अजीब लोग हैं यार, काम और कोई है नहीं, दूसरों की वीडियो में बस पकड़ लो ये क्या बोल रहा है, यहाँ से पकड़ो. खैर, तो भाई आई वुड से कि यार अभी आई नो आप छोटे हो और आपको ज़ाहिर ये चीज़ें ज़ाहिर फील हो रही होंगी, बट व्हाट योर कज़न इज़ एक्चुअली डूइंग, ही इज़ पॉइजनिंग योर पेरेंट्स
और अगर आप फील्ड छोड़ के जाओगे ना तो दैट मीन्स कि आपने ये पूरी फील्ड खुली छोड़ दी जहाँ पे वो आपके पेरेंट्स के कान भर सकते हैं। और आप अगर साल 1.5 साल बाहर रहे, 2 साल बाहर रहे, तो योर पेरेंट्स विल टोटली डिसलाइक यू। और पता नहीं फिर क्या क्या बोलेंगे, जी तो लंदन में ये भी करता है, हम फलाने ने हमें ये बताया, फलाने ने ये बताया। स्टैंड योर ग्राउंड एंड बी लाइक दिस इज़ माई टेरिटरी। भाई वो बनना होता है यार, वो ब्रेकिंग बैड कौन था, वॉल्टर वाइट, वॉल्टर वाइट बनना है, ये मेरी टेरिटरी है, अपन का एरिया है, इधर नहीं आने का, इधर से निकल। और काम में जो है ना, इफ़ ही वर्क्स फॉर यू, फाड़ दो उसकी, सफाई करा, बोल भाई ये डेस्क गंदा क्यों है। और खुद ना करो, किसी मैनेजर को बोलो सही करवाओ, उसको तंग करो, बिकॉज ही हैज़ रूइंड योर पीस इनडायरेक्टली। गाड़ी में आता है टायर स्लैश करवा दो, ख्वार करा दो। अबे यार वो है ना फिल्म, वो देखिए तुमने, आई सॉ द डेविल, उसमें एक बंदा पुलिस वाले की बीवी को मार देता है, ही रेप्स हर एंड देन ही किल्स हर। पुलिस वाला उसको ढूंढ लेता है मगर उसको मारता नहीं है, उसको तरसा तरसा के मारता है, थका दो अगले को। तो ग्राउंड नहीं छोड़ने का होता। लाइक आई सेड, अगर मास्टर्स जेन्युइनली करना है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी से डर के नहीं भागना होता। स्टैंड योर ग्राउंड भाई। और अपने माँ बाप को लो, मैं आपकी औलाद हूँ, मुझे पता है आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, मैंने हर चीज़ ओके की है, ठीक है। एक हो गया, आपके वाले साहब सिगरेट पीते हैं, अगर तो पीते हैं तो बोलो भाई उसी की एक्स्ट्रा फॉर्म तो है, ठीक है भाई नहीं पीऊँगा, आई एम ट्राइंग टू क्विट। बोलो मैं रीहैब ले लेता हूँ, या ये कर लेता हूँ, या वो कर लेता हूँ, मैं और जिम कर लेता हूँ थोड़ा, रात को दिल करेगा पुशअप्स लगा लूँगा, थक के सो जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, बट आई विल ट्राई। बट लाइक डोंट लूज फेथ ऑन मी जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। आई मीन यू कैन से 1,000 थिंग्स अबाउट मी, बट लाइक एटलीस्ट आई एम लॉयल। मैंने पढ़ाई की है, बिजनेस अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ इतनी कम उम्र में। और हाँ बेटा, लेकिन ये गैमलिंग से दूर रहना, ये गैमलिंग बहुत ख़तरनाक है, ये आपको सड़क पे ले आएगी, इस पे मत पड़ना। ये जो आपने लिखा है ना, मैं वो पार्ट भूल गया था, ये भी पाउंड का निशान नज़र आया तो मुझे याद आया। गैमलिंग विल फक यू अप, डोंट डू दैट। बहुत मेहनत से बनते हैं पैसे, यूँ करके जाते हैं। 9,500 पाउंड एक रात में उड़ा दिए, 25 लाख रुपए। ओ भाई 25 लाख में लोगों का क्या क्या नहीं हो सकता। सो ये बहुत गलत हरकत है। आई विल नेवर एवर इंडोर्स दैट और कंडोन दैट। ये आपने बिल्कुल छोड़नी है। रही बात इसकी, इफ़ यू रियली वांट टू क्विट, टेक सम हेल्प, कोई थेरेपी ले लो, किसी से बात कर लो। वो लोग जो के पीपल हु स्पेशलाइज इन ड्रग रिहैबिलिटेशन, ठीक है। नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है ना। और अगर फैमिली डिसअपॉइंट हो रही है और आपको खुद भी पता है कि वो बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो फिर नहीं करो, इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो, वेब शेप कर लो। आई मीन अगेन नॉट इंडोर्सिंग वेब, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड यू अ वे आउट। मगर ग्राउंड नहीं छोड़ना, ये कज़न की वजह से छोड़ना नहीं है, इसको थका के मारो, थकाओ इसको, मजाक नहीं कर रहा मैं, आई एम वेरी सीरियस। ऐसे लोग जो हैं, सोचो यार, आपसे आपके माँ बाप छीन लें, सोचो माँ बाप बददिल हो जाएं अपनी औलाद से किसी ऐसे थर्ड क्लास कज़न की वजह से। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, इनका ये खर्चा पानी बंद करो। बोलो खुद कमा रहा है, खुद का ये हैंड आउट्स देना बंद करें। एक तो हमारी ये सेवियर कॉम्प्लेक्स है ना, अंकलों को पूरा ख़ानदान चलाना है, पूरा ख़ानदान पालना है, इस चीज़ से बाहर आए और बोले भाई बड़ा हो गया, खुद कमा, अब यहाँ से कोई हैंड आउट नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर जुल्म करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप पे जुल्म करना कम करें, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं डिज़र्व करते हेल्प आपकी, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, लेकिन एक हद तक। ये नहीं कि ज़िंदगी भर वो अब आपके बैठे कि जी राशन यहीं से आएगा, हमने हाथ पैर नहीं चलाने, ऐसा नहीं करना, बेकार नहीं करना लोगों को। तो बोलो बेटा अब आप काम करते हो तो अब हैंड आउट यहाँ से नहीं मिलेगा, अब आप खुद संभालें अपना घर। और ग्राउंड छोड़ के मत जाना, और उसको ज़रा पकड़ के उसको कन्फ्रंट करना कि लाइक आई हैव नॉट फॉरगॉटन दिस व्हाट यू ट्राई टू डू विद माई पेरेंट्स एंड आई विल सी यू, ठीक है ना। अब वो ख़ानदान के व्हाट्सएप पे जाए, फुप्पो लड़ने आ जाए, कुछ भी आ जाए, खल्ली वल्ली, अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना। अबे भाई सेल्फ एस्टीम, ये ऐसे चक्कर में अपने माँ बाप छोड़ के भागोगे क्या, मुल्क छोड़ के भागोगे, काम चल रहा है तुम्हारा, दफ़ा करो उसको भाई। उसको बोलो कोई मसला है, अगर ये फुप्पो का बेटा भी अगर बोलो अगर तू इतना ही फुप्पो है तो फिर क्या ही बंदा बात करे यार, ज़्यादा कुछ करे चमाड़ वमाड़ लगा हैं भाई, चंबे अम्बे करा दो। हाँ अबे हटा, अबे ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदार जो है ना, अबे दिमाग ख़राब करते हैं। और फिर उससे यार देखो पूरी फैमिली का फैब्रिक ख़राब होता है ना। वो बच्चा घर छोड़ के जाएगा, माँ अलग रोएगी, बाप डिसअपॉइंट फील करेगा, मैंने ज़िंदगी भर कमाया, मेहनत की, ये किया, वो बागबान चल जाएगा कि यार अब ये नशों में पड़ गया है और ये हो गया है और वो हो गया है, और वो आके कान भर रहे हैं,
फैमिली यूनिट बर्बाद करते हैं यार इस तरह के लोग. ऐसे लोगों को घरों में नहीं घुसने देना चाहिए भाई, जो आके कान भरें, गॉसिप करें, इसकी शिकायत उसकी शिकायत. व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, इस मुल्क की सबसे बड़ी तबाही है आजकल. सबसे बड़ी तबाही. गॉसिप गॉसिप गॉसिप, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, वॉइस नोट आ रहा है, ये आ रहा है. मैं भाड़ में जाओ, टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों का. किन चक्करों में फंसे हुए हैं यार लोग. तो भाई टेंशन नहीं लो और अपने ग्राउंड में खड़े रहो. पढ़ने जाना है जेन्युइनली तो जाओ, लेकिन इस टॉक्सिसिटी को अपने ऊपर सवार नहीं होने दो, वरना वो एम्पावर होता है. आपने पावर नहीं देनी. बोला भाई पावर तो मेरे पास ही है. काम तू किसके लिए करने आता है, मेरे पास आता है ना करने. हाँ जा बोल, जिसको जो बोलना है बोल, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. बुलेट प्रूफ बेगैरत हो जाओ, बोलो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बोल और बोल. और एक काम कर, मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज करता हूँ, तस्वीर ये लगा के भेज दो, सेल्फी भेज दो, बोलो पी रहा हूँ, आओ, किसके बच्चे ने पीनी है, बच्चे भेजो, तुम्हारे बच्चे ख़राब करूँगा मैं. अबे पंगे लो, जो एडवर्सिटी जहाँ से आ रही है घुस जाओ उसमें, बोलो मैं तुम्हारे बच्चे ख़राब करूँगा, और बोलो भगाओ उनको से दूर. अबे हाँ, बोलो मैं बहुत बैड कंपनी हूँ, तुम्हारे बच्चे खा जाऊँगा कसम से. अबे टेंशन नहीं लेनी भाई, जा काम कर अपना, चिलिंग करो भाई. Alright जी, next one says, I really hope you read this, desperate for advice. Allah khair kare. Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're well. I have always listened to your podcast and it's one of the things I took out my time for during my CSS prep. Thank you for always being the voice of hope. Coming to my story, I'm the only daughter in my family. I always try to be nice to people, and people in my family pray that may their daughters grow up to be like me. I'm a civil servant and come from a military family. While growing up, I had the most beautiful family. My father never let any relative spoil our peace. See, ये होता है अल्फा मैन. दूसरों को अलाउ नहीं करते अपने घर का पीस खराब करना. He was always there for us, so was my mother. We were one of those families who ate together and laughed together and celebrated the smallest of achievements. I had many proposals from the family, and till the day of my barat, my relatives insisted that they'll do anything just for us to agree to their proposal. Okay. So you were the catch of the family, perhaps. Soon after my allocation, I got married into an unknown family. It was an arranged marriage and jhat mangni pad bear type scene. Everything was too good to be true. It was a political family, big names and posts, and kind of Khandani race that we see in the movies. The maternal side of my husband mostly was very rich. My life was good after marriage, but I realized very early that my sass is a difficult person, but I always stayed quiet to whatever she said. I told my husband that my own family is the most precious thing to me, and he understood that. I have a really good bond with my husband despite our differences. We really respect each other and also are madly in love, and it's only been 6 months to our marriage, mashallah. But my sass is very disrespectful towards my family. She never recognizes them in any gathering and always criticizes their choices and spending. She thinks they are below her standard, and she thinks the same for everyone except her own family. Soon after my marriage, I came to know that my sass does not have a good relationship with her husband. Of course, ये वहीं से तो टॉक्सिसिटी दूसरी जगह जा रही है. Or her only son, who is my husband. यानी बाप से भी अच्छी नहीं है, husband से भी अच्छी नहीं, बेटे से भी अच्छी नहीं. She has been so toxic that my husband literally hates her. He says that if people hadn't told him that she gave birth to him, he would never believe that she is his mother. Wow. Whereas he loves his father so much, and things get ugly when she abuses and talks bad about my father-in-law and his ancestors. Oh God. अब शौहर को गाली और फिर बाप दादाओं को गालियाँ. That's so sad, man. My sass has become increasingly toxic. She's obsessed with her things. We are not allowed to use any plates other than the 2 plates that are given to us. यार, अब ये खानदानी रईस हैं, 2 प्लेटें दी हुई हैं कि भाई तुमने इसी में ही खाना है. Like, who fucking does that, man? We are not allowed to entertain our guests as it would spoil her sofas. तो सोफे लिए क्यों हैं अगर उसमें लोगों ने नहीं बैठना? People admire the house I live and the things I wear, as she has given me my really expensive burry, including shawls of 2 to 5 lakh. Even if I cook something on weekends, she keeps on cleaning the kitchen for the whole day, thinking that I have destroyed her kitchen, but wouldn't say anything directly to me. The house we live in is hers. Recently, my husband and she had a spat as she kicked out a 35-year-old maid and refused to keep any other maid. We stayed silent for 20 days thinking that maybe she would realize and call back the maid, but that didn't happen. My husband didn't let me cook either, as he says that everyone will get too comfortable with you managing the office along with the kitchen. That's right.
सही किया उन्होंने. And there will be no coming back. It's been more than a month that we don't have a servant and no proper meals. Upon inquiring, things blew up. It turned so ugly, so much so that she called me and asked me to leave her house along with my husband. My husband and her mother shouted at his mother shouted at each other, and my legs were literally trembling. This might seem trivial to others, but I have never known what living in a toxic family is. All this time, I have maintained her good reputation in my family. I should mention that I come from a middle class family. Anyhow, I calmed my husband down and tried to ensure that the family stays intact. If we leave the house, my father in law would also leave the house as well. I just gave you my background so that you can understand where I'm coming from. I'm obsessed with the family values, and it is so much against that. My husband insists that he's doing this for me and for our future kids because they don't deserve the disrespect and toxicity. If we leave the house, we will have to compromise on the lifestyle and give up on maternal inheritance, and Zameen are the primary source of income, as well as the house that we live in. This would mean struggling for some years, and I don't know how to face people. And what if I regret doing this? And the guilt of breaking the family and leaving the mother behind. I have never asked my husband to leave the house and confront his mother. I feel that my Saas is not mentally stable, and this makes me even more sad. But my husband says that we cannot destroy our life for this. Junaid Bhai, I don't even know what I'm asking you for, or if this is just a catharsis, but I'm so stressed and under pressure. Everyone calls me and tells me that only I can make things better, and I don't know how. I feel so helpless, like a failure. So clearly, अब बात ये है कि आपने जैसे अपनी फैमिली का स्केच खींचा, विच इज़ लाइक अ प्रॉपर यूनिट जो कि साथ खाना खाते हैं और छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी इंजॉय करते हैं, एंड देन कमिंग टू दिस फैमिली दैट साउंड सो डिसफंक्शनल, तो आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, इवन दो ऑल द साइंस आर देयर दैट this is an unhappy household and this is where someone should not be living, or at least bringing in more people. That means your kids. आपके ससुर खुद परेशान है, वो खुद घर छोड़ना चाह रहे हैं, सोफे पे बैठने नहीं दे रही, आपको 2 प्लेटें दी हुई हैं. मतलब आप एक बहुत शाइनी प्रिजन में रह रही हैं जिसमें सोफे हैं तो बड़े महंगे, जिसमें आपकी शॉल तो 5 लाख की है, मगर उस शॉल से आपको आंसू ही ना पोंछने पड़े एवरी नाउ एंड देन, तो किस काम की वो शॉल? इफ़ यू आर नॉट सेलिब्रेटेड और इफ़ यू आर नॉट एन्जॉइंग द वेल्थ, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेड वेल्थ? I know someone who comes from a family like this, extreme amounts of wealth, extreme amounts of wealth. घर में 1 दर्जन नौकर, इमेजिन फिर वो घर ही कितना बड़ा होगा. दर्जन से ज़्यादा ही है, बट लाइक आई नो इतना ही फिगर है, राइट? एंड बट टॉक्सिसिटी बहुत थी. अब भैया आपके ऊपर है कि यार मटेरियल तो बहुत है, गाड़ी भी अच्छी है, ख़ानदान में स्टेटस भी है, रिश्तेदारों में या उस शहर में जहाँ वो रहते हैं वो सब कुछ तो है, लेकिन वो सब फसाड है, वो सब एक झूठ है, वो सब एक यू आर जस्ट कीपिंग अप द अपीयरेंसेस, एंड इनसाइड यू आर टॉर्मेंटेड, यू आर ब्रोकन. आप खाना नहीं पका सकती. मतलब आई एम श्योर द किचन वुड बी गॉर्जियस इन योर हाउस. जिस तरह का आप बता रही हैं, जहाँ 5 लाख की शॉल आती है और इतने महंगे सोफे होते हैं, वहाँ किचन बहुत ही खूबसूरत होगा. लेकिन इस किचन में आई थिंक किचन इज़ अ प्लेस दैट ब्रिंग्स द हाउस टुगेदर, राइट? बेडरूम में आप अपने होते हो, लाउंज में अलग सीन है. किचन एंड डिनर टेबल इज समथिंग दैट ब्रिंग्स द फैमिली टुगेदर. सो इट्स अ बीकन ऑफ हैप्पीनेस इन माई ओपिनियन. वहाँ से हैप्पीनेस निकलती, बिकॉज the food you cook, you put so much love and warmth in it, and then your family enjoys it. Gives you an extreme amount of bliss. लेकिन अगर वो bliss जो है वो इतनी टॉक्सिसिटी में बदल रही है कि आपने बस इतनी सारी प्लेटों में से सिर्फ 2 जो आपको अलॉट की गई हैं, जो कि जेल में भी ऐसे नहीं होता, तो क्या फ़ायदा? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? आपको शायद ये गिल्ट फील हो रहा है कि वो मैं एक फैमिली यूनिट तोड़ दूंगी और कल को अगर ये सड़क पे आ गए तो मैं अपने आप को कोसती रहूँगी. देखिए, कल जो भी होगा वो उनकी अपनी किस्मत है. योर हस्बैंड साउंड्स लाइक अ वंडरफुल मैन हु इज़ टेकिंग अप अ स्टैंड फॉर यू, विच इज़ ग्रेट, ever so rare to read in these emails. And it's good that he realizes and recognizes where the problem is coming from.
आपके ससुर भी परेशान है, तो फिर जब वो फैमिली के दो बड़े ही नहीं बन रही, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, एटलीस्ट बेटे ने तो पूरी ज़िंदगी गुजारी है, बाप ने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है, तो जब दोनों ये कह रहे हैं कि ये नहीं चल सकता, तो फिर आप डोंट डोंट टेक द ब्लेम। ये आप पे नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि आपके हस्बैंड और आपके फादर इन लॉ आपके साथ कथारसिस कर रहे हैं, बिकॉज दे वर इम्प्रिजन्ड इन दिस फैंसी जेल, और उनके पास कोई एक्सटर्नल, अब नौकरों से बंदा क्या ही शेयर करेगा, ठीक है नौकरों को पता सब होता है, नौकरों को ज़्यादा पता होता है, मगर आई थिंक आप, आई एम अज्यूमिंग यूर दी ओनली बहू इन दैट हाउस, सो यूर द फर्स्ट आउटसाइडर इन दैट फैमिली, तो आई थिंक दे आर रीचिंग आउट टू यू फॉर हेल्प। कभी कभी इंसान को कोई दूसरा इंसान ही लेके बाहर जा सकता है, वो खुद इतना इम्प्रेजेंट भी होते हैं, टॉक्सिक भी होती है चीज़ें, लेकिन उनको हिम्मत नहीं बढ़ रही होती, तो कोई अगर बाहर वाला जब ये रीअश्योर करता है कि हाँ देर इज़ अ प्रॉब्लम, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, थेरेपिस्ट क्या करता है, दे रीअश्योर इफ़ योर प्रॉब्लम इज़ जेन्युइन, तो वो बताते हैं कि हाँ इट इज़ अ प्रॉब्लम, देन यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि हाँ यार ये भी यही कह रही है, सो मस्ट बी ट्रू। So I think they are looking at you for a rescue. This is my assumption. So far, judging on the email that you sent, I could be wrong. However, ये कहना कि जी लाइफस्टाइल के लिए कस्टम हो गए हैं, तो भाई गाड़ी और घर हर चीज़ नहीं होती, मेंटल पीस हर चीज़ होती है। हाँ, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फ्रेंड आई हैव, तो वही इसी तरह का फैंसी हाउस होल्ड बट लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी, हैड टू like really go beyond, go out of her ways, and वो lifestyle अब उसका नहीं है। They're not struggling, but like they're happy, they're content, and I see them and I'm ever so happy for them that she took a stand for herself। और ऐसी फैंसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे रोना धोना हो, टॉक्सिसिटी हो, जहाँ आप खुश नहीं हो, और ऐसी बड़ी हवेली का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा एक बेडरूम का अपार्टमेंट है जहाँ पे आप हो और आपके लव्ड वंस हैं एंड देयर हैप्पी। घर इंसानों से बनता है, साइज़ डिटर्मिन नहीं करता कि घर क्या है, या खुशहाली है या बदहाली है, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि घर खुश है कि नहीं है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। मुझे डीजे कॉलेज में पढ़ना था हमेशा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, राइट, और वो पहला साल था जब कैप पॉलिसी आई थी, सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी। उसमें ये था, पहले क्या होता था, मैं साउथ कराची का हूँ तो साउथ के कॉलेज में मुझे एडवांटेज है, नॉर्थ वाले को नहीं। अब जो बहुत अच्छा बच्चा है नॉर्थ में लेकिन उसको डीजे में पढ़ना है, दयाराम जेठमल कॉलेज, वो नहीं पढ़ पाएगा बिकॉज मुझे एडवांटेज मिलेगा, तो मैं 70% लेके जा सकता हूँ, वो 79 लेके भी नहीं आ सकता। सो ये गलत सिस्टम था। फिर ये कैप पॉलिसी है, जेनरिक पॉलिसी ऑल अक्रॉस सिटी। अब ये कि सब पूरा शहर एक दूसरे से compete करता है। सो इंस्टेड ऑफ DJ, which I wrote on number 2, I got admission in the college which I wrote number 4, government college from in Nazamabad. So when I went to my college, I got really upset कि यार मेरा ड्रीम था DJ में पढ़ने का, because it's a cool college, 1860s की बिल्डिंग है, it's so magnificent, and तो मैं वहाँ थोड़ा रोने लग गया। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बिल्डिंग नहीं पढ़ाती इंसान को, इंसान खुद पढ़ता है, राइट। तो जगह डिटर्मिन नहीं करती कि खुशहाली बदहाली, वो आपके एक्शंस और रिएक्शंस डिटर्मिन करते हैं इफ़ यू आर हैप्पी और नॉट। एंड देन आई डिड वेल, इट हेल्प मी, आई डिड वेल माशाल्लाह, आई स्कोर्ड गुड GPA तो खैर नहीं थी, परसेंटेज। एनीवे, सो ये लाइफस्टाइल वाला टेंशन आप छोड़ें, भले अब इनहेरिटेंस की बात है। अब आपको, अगर आप ये सोच रही हैं कि चलो कुछ साल वी वेटेड आउट, सबने इस दुनिया से जाना है एंड देन फिर सुकून हो जाएगा, मगर तब तक फिर आपकी पर्सनालिटी इतनी डिस्टॉर्ट हो चुकी होगी, आपके बच्चे भी हो चुके होंगे, फिर वो जब घर में देखेंगे जी दादी अम्मा 2 ही प्लेटें देती हैं हमें। बच्चों का तो पहला प्यार उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो जब वहाँ से इतनी टॉक्सिसिटी मिलेगी, उन बच्चों के बारे में आपने सोचा है? ये सारी इनहेरिटेंस एक तरफ रख लें आप, जितनी ज़मीनें पता नहीं 1000 एकड़ होगी, बहुत बड़ी बात तो होगी, और बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी एंड हेल्थ वो एक तरफ, क्योंकि अगर बच्चा एक बार डिस्टर्ब हो गया इनिशियल ईयर्स में, फॉर्मेटिंग ईयर्स में, ज़िंदगी ऑफ हो जाती है बच्चों की। और हम ऐसे कितने केसेस देखते हैं जो घर में डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से या फिर
इस तरह की टॉक्सिसिटी की वजह से उनकी पर्सनालिटी में इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है और इतना डिसऑर्डर हो जाता है. लुक एट योर सेल्फ, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हैप्पी हाउस होल्ड, राइट? अब इमेजिन करें आप इस घर में पैदा हुई होती और पली बड़ी होती तो आपकी पर्सनालिटी आज कैसी होती. लुक एट योर हस्बैंड, राइट? डू यू वांट योर किड्स टू टर्न आउट, आई मीन ठीक है योर हस्बैंड इज़ गुड एंड ही रिकग्नाइजेज, बट वो डैमेज भी तो होगा ना, उसको माँ का प्यार ही नहीं मिला. कह तो रहा है अगर मुझे लोगों ने नहीं बताया होता कि इसने तुम्हें जन्म दिया तो मैं मानता ही नहीं मेरी माँ है. डू यू वांट योर किड्स टू ग्रो अप इन हाउस होल्ड लाइक दिस? ऑफ कोर्स नॉट. तो ये इनहेरिटेंस और ये और लाइफस्टाइल ये सब दोबारा आ जाता है, ये सब हो जाएगा. जो नहीं आता ना वो फिर एक बार सुकून छिन जाए या मेंटल स्टेबिलिटी छिन जाए ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है. सो आई थिंक यू नीड टू टॉक टू योर हस्बैंड एंड उनको भले ही सुना भी दीजिएगा जो मेरा जवाब है. आई थिंक यू शुड चूज़ योर सेल्फ. इस अब आप बोल के दिखा दें अपनी सास को कि आप थेरेपी लें, सवाल ही नहीं पैदा होता वो कभी लें थेरेपी. तो ऐसे लोग जो है ना अपना घर खुद बर्बाद करते हैं. हर चीज़ अच्छी होती है उसके बावजूद जो है दे लाइक टू क्रिएट केओस, दे लाइक टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि पीपल हु ग्रो अप इन केओस दे फाइंड पीस थ्रेटनिंग. तो हालांकि आपके पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े घर में रहती होंगी, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्रॉब्लम अब क्रिएट की गई है. तो मैं बहू को किस तरह सताऊं, चलो जी ये 2 प्लेटें, 2 से तीसरी हुई तो लड़ाई होगी, या फिर किचन जब करेगी तो मैं अच्छी तरह धुलवाऊंगी, एहसास दिलाऊंगी तो गंद करके गई हो. शी इज़ जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिकॉज शी लाइक्स द ड्रामा. उनको ज़िंदगी में ड्रामा चाहिए, विच इज़ वाई अब आई डोंट नो यार, सम हस्बैंड्स आर लाइक वेरी डोसाइल एंड सम हस्बैंड्स आर लाइक वेरी बोरिंग. थोड़ा ड्रामा दिया करें बेगम को, नॉट नेगेटिव ड्रामा बट लाइक कीप थिंग्स एक्साइटिंग इन अ वे, गो ट्रैवल, हैव फन. बहुत से लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, उन्होंने दूसरा शहर नहीं देखा होता, या ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर जाते हैं शॉपिंग के लिए एंड दैट्स इट. ट्रैवल करें, एक्सपोजर करें, अपना होराइज़न खोलें, दुनिया देखें, एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें, मगर ऐ दे कि वही स्टार प्लस, ये 2 प्लेटें, ये 2 प्लेटें. तो भाई ये प्लेटें जो है ना सर पे फूट जाएंगी. तो आप अपने बारे में सोचें और अपनी आने वाली नस्ल के बारे में सोचें. आप ठीक है रियलाइज़ करती हैं इस चीज़ को बिकॉज यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बट जब आपके बच्चे पैदा ही इसमें होंगे वो समझेंगे ये नॉर्मल है एंड दे विल बी डैमेज एंड फिर उनकी जनरेशन विल बी डैमेज. फॉर एग्जाम्पल माई सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग पीक कोविड, राइट? उसने ज़िंदगी भर लोगों को मास्क लगाते हुए देखा है, राइट? तो उसके लिए नॉर्मल है कि यार हाँ सभी मास्क लगाते हैं, या वो इस तरह की चीज़ें. तो फिर आपके लिए तो ये नॉर्मल नहीं है बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दी अदर लाइफ. उनके लिए नॉर्मल होगा, फिर वो ऐसे ही बन जाएंगे. सो प्लीज़ थिंक अहेड. इनहेरिटेंस को छोड़ें, आपकी थोड़ी है इनहेरिटेंस, या आपने थोड़ी कमाई है जो आपको जाने का डर होगा. जिनका है वो डील कर लेंगे, वो इसको मैनेज कर लेंगे, उनको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा तो हाथ पैर मार लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे. बट यू नीड टू बी लुकिंग फॉर पीस एट दिस एज एंड यू जस्ट गॉटन मैरिड, 6 महीने हुए हैं. So at this stage in your life, you need all the happiness and all the butterflies in your stomach. Go travel, have fun, bond more with your husband, and just try to have a good time. But अगर आप ये प्लेटें ही इसमें लग गई तो फिर तो ज़िंदगी फाके आ गई. तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन का सोचें. थैंक यू. और जी लास्ट क्वेश्चन बिकॉज देयर इज़ बिन अ क्लैश. हमारे स्पोर्ट्स की शूट भी ऊपर है और टीचर भी आ गए हैं तो उनको मैंने 10 मिनट मांगे हैं और दैट्स वाई वी नीड मोर इक्विपमेंट ताकि ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, सो दैट आई कैन डू व्हाट आई डू एंड देन उनकी शूट चलती रहे. एनीवे, the title is Rarity of Finding a Partner Yourself. I'm a 24-year-old female living in Lahore. I've been watching your videos for a year now and I made sure to subscribe to all 7 channels of yours. By the way, they are 8, but it's okay. Thank you so much. Because I truly believe you're doing so much good for Pakistan's youth. You and your team deserve the best and more. Keeping this sweet and short, I'm personally not a huge fan of arranged marriages, largely because of how flawed the system is. In arranged marriages, you're judging an individual based on the family and wealth. These things are certainly important, but what's the point of having it all and not being able to form an emotional connection with your partner? Of course. For example, 40% of the questions in your series are related to marital issues. I understand fights are part of all relationships, but the issues people come forward with are so heartbreaking and the kind that could have easily been avoided if the two parties had engaged in healthy communication beforehand.
I'm trying not to make bold assumptions. I have obviously also seen happily arranged couples as well. I've always yearned for a love marriage. The idea of finding your best friend and a lover in one person is everything one could ask for. Speaking as someone whose parents are okay with love marriages, where the hell do I find someone? Bumble, Shadi.com? It's so difficult to meet and connect with someone. After a point in your life, your social circle comes to a standstill and it's so frustrating. I graduated from one of the best institutions in Lahore, and just to give you an idea of how rare it is to find someone, I've attended 6 weddings of my friends in the past 2 years, and out of which only one was a love marriage. I feel like our culture and how we've been raised reduces the chances of finding someone for yourself. I don't know if it's the fear of disappointing your parents or the idea that time आने पर मैं उनकी पसंद की शादी करूंगा. But people are so comfortable spending the rest of their life with whosoever their parents approve of. I would love to hear your thoughts on the subject. Yes, you're absolutely right. As of now, I have 10,443 emails, and we can easily say आपने तो बड़ा आराम से मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव 40% का, आई थिंक इट्स 80%. और वो सारा अगर हम देखें, जैसा कि आपने कहा, all of these problems that I'm talking about could have been easily avoided अगर वो एक दूसरे को जानते. मगर फिर यहाँ पे आपके दूसरे मसले आ जाते हैं, एंड देन कल्चरल इश्यूज, एंड पीपल आर नॉट ओपन अबाउट मिंगलिंग एंड देन लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर. देखें हर चीज़ चूँकि हम गंदी फिल्में देखते हैं तो हमारी सोच गंदी है, तो हम देखते हैं जी लड़का लड़की हैं तो फिर कुछ टेढ़ा ही काम होगा. आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन करके भी मिंगल कर सकते हैं, वेयर यू गेट टू नो द पर्सन हु दे आर, व्हाट दे आर अबाउट. खैर, अब जो आपने लिखा है बम्बल, शादी.com, आई थिंक दोज वेबसाइट्स एंड दोज एप्स, आई डोंट नो मैन, लाइक आई हैव यूज्ड टिंडर obviously like long time ago. I didn't know well. So it was a great way to meet people. I ended up making a lot of good friends on Tinder, as opposed to why I was there, you know. Khair, but like, so I have a friend who's really active on Bumble. She's crossed her 30s, and obviously she's looking, she's hoping to find someone with whom she can, you know, share a life with. मगर फिर वही वाली बात है कि वहाँ पे वो फिर जिस तरह की मुझे दिखाती है, like people with weird ass bios, and like it's laced with sexual innuendos, and people are trying to be like, oh, I'm sex positive, this, that. It's just people are only looking for action, and they're not looking for connection. So sadly, I don't know बाहर मुल्कों में ये बम्बल शादी.com में कौन से क्वालिटी मैन हो, but like the kind that my friend tells me about, it's just like I feel they are the leftovers of society, and nothing really good is happening there. एक तरीके का ये है कि one, like, you know, if you elevate yourself in a way where you're doing wonderful things, you can build your own portfolio in a way where you are bound to meet quality people, and that's where you can find someone. जितना आप अपने आप को अंदर से अच्छा करोगी, या फिर आप अपने, बट अब हर लड़की कारोबार तो नहीं कर सकती ना. फॉर एग्जांपल, लेट्स से, और यू हैव अ वेरी कूल स्टार्टअप, एंड देन देयर इज दिस सम फेस्टिवल हैपनिंग जहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के और इवन पाकिस्तान के भी और डिफरेंट स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वेयर यूर लाइक प्रेजेंटिंग, यूर नो पैनल डिस्कशन, you exchange numbers, you meet people, and then you're like, oh, I kind of dig this guy, let's find out more. पर हर लड़की तो ये नहीं करेगी ना, सब स्टार्टअप तो नहीं खोलेंगे ना दूल्हा ढूंढने के लिए. That's weird. इसके लिए like मैंने पहले भी कहा था कि like there used to be this app called meetup.com which had interest based groups जहाँ पे people can find, so not to like date each other, but like find similar interest वाले लोग. So for example, I have a friend, she's a photographer in Dubai. So she had chosen the photographers की community, तो वो फोटो वॉक पे कभी निकल जाते थे, कभी रासल खेमा जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं. किसी को जैज़ पसंद है तो वो जैज़ वाले इवेंट्स पे जा रहे हैं, किसी को वाइन पसंद है तो वो वाइन वाली लाइक यू नो वाइन टेस्टिंग वाले इवेंट्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. वाई? बिकॉज इट्स नॉट अ सेफ एनवायरनमेंट. यहाँ पे आप इस तरह की कोई भी चीज़ करो, एंगल लोग यही निकालेंगे कि यार लड़कियाँ फंसानी है. और
फिर जब आपका एंगल ही शुरू से हो ना कि मैं शिकार पे आया हूँ, तो फिर आप खूनख्वार होते हो और फिर आप वाइब नहीं आती. आप समझ रहे हैं मेरी बात. देयर इज दिस इंडियन कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्वयंवर. अब आई people in from India can give much more detail. So there used to be a show called Swayamvar 2000. और वो 2000 में नहीं, वो 1994 में आता था जी टी वी में. एंड देयर वाज एन इंडियन एक्टर called Lilliput because he was very very small. He was a midget. I don't know, midget is a politically correct term, but he was of a smaller stature. Let's just say that, right? So Lilliput, and he had a co-host who was a very good-looking lady. So Swayamvar 2000 was a matchmaking, fun show. और आई डोंट नो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि नहीं है. सो उसमें वही होता था, जैसे MTV पे आपको याद होगा मैच के नाम से एक आता था इवेंट, जिसमें एक लड़की है, शी इज़ बिहाइंड दिस वॉल, इट्स मेड ऑफ अ हार्ट, और वो बाहर कैंडिडेट्स हैं एंड देर इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स कि मैं दिस हु आई एम, दिस व्हाट आई डू, एंड देन शी इज़ लाइक नोटिंग डाउन गाय नंबर 1. ये अभी भी इस तरह की चीज़ें आती रहती है टिकटॉक पे, मैं देखता रहता हूँ. सो स्वयंवर, विच आई थिंक आई हैड रेड करेक्टली, यू was kind of a ancient thing where people would like organize these events where younger people can mingle and meet each other and then they find a bond. तो आई थिंक उसका ये एक यो किस्म का वर्जन था विच वॉज दैट शो जो जी टी वी पे आता था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू लिलपुट. आई एम गोना गूगल हिम राइट अवे, राइट आफ्टर दिस. शिट, क्या याद आ गया. सो अब यहाँ इस तरह की कोई चीज़ हो नहीं सकती. सो व्हेन आई वाज इन दुबई, I met this lady through Tinder. She was a Pakistani girl, very nice girl. काम करती थी and obviously she was looking to settle down, and then उस वक्त मेरी priorities वो नहीं थी. So we had a very nice shawarma and shisha, and then बातों बातों में फिर मैंने बोला यार, so this is what I come across a lot, especially in Dubai when I was living there. A lot of Desi families had this problem कि यार हम already पाकिस्तान से बाहर हैं, तो pool ऑफ मेन या पूल ऑफ पोटेंशियल पार्टनर बहुत कम है. एंड देन फिर हमें पता ही नहीं कौन कौन है, क्योंकि कम्युनिटी सिस्टम इतना कोई है नहीं. सो शी एंड आई डिसाइडेड कि हम वहाँ मैरियट में या विच एवर होटल विल डू दिस इवेंट वेयर पीपल कैन कम एंड लाइक पीपल कैन कम विद chaperones, यानी अपने वो पेरेंट्स के साथ या अपने किसी एल्डर के साथ आएँ. एंड लाइक इट्स प्योरली शादी ओरिएंटेड इवेंट, और लोग आए, उन्होंने नंबर लगाया हुआ हो, एंड देन यू गेट टू मीट द पर्सन, एंड देन 5-5 मिनट का आप इंट्रो करें, लड़की उसकी फैमिली या लड़का उसकी फैमिली, एंड देन यू नोट डाउन कि हाँ मुझे 512 समझ आया, 699 समझ आया, एंड देन यू लेटर रीच आउट टू देम. ये एक वाइल्ड आइडिया था. टर्न्स आउट इट एक्चुअली हैपन्स, एंड आई वाज लाइक शिट, आई हैड अ ब्रिलियंट आइडिया राइट ऑफ द बैट. शीशा पीते हुए, शवरमा खाते हुए आइडिया है. एंड शी एंड आई डिसाइड that we will do this, and then like we lost contact or something. मुझे उसका नाम भी नहीं याद. शिट, आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम आई मेट हर. एनीवे, तो दिस वाज दैट. एंड देन अगेन, अब मेरी यहाँ भी बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह की कोई चीज़ हो या कोई इवेंट हो. तो लेकिन यहाँ पे भी ना फिर ये वाली चीज़ शादी ओरिएंटेड ही चल सकती है. बट देन अब उसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक इवेंट कराता हूँ यूजिंग माई सोशल मीडिया एंड माई पुल एंड माई आउटरीच, कि भाई मैं एक इवेंट करा रहा हूँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, ओके, जहाँ पे वहाँ के जितने भी लोग हैं, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं बट दे कांट फाइंड अ पार्टनर, तो ये रजिस्ट्रेशन है, ये फॉर्म है, ये इसकी फ़ीस है. ज़ाहिर है होटल कराना पड़ेगा, खाना पीना, चाय नाश्ता, ये तो चलेगा ना. और यहाँ आ जाएं और फिर देख लें. और हर फैमिली के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, ये बड़ा आइडिया फ्री में बांट रहा हूँ मैं ये आइडिया. लड़का है, लड़के के साथ माँ बाप हो, कुछ लोग होते हैं उनके माँ बाप हयात नहीं होते, बड़ा भाई बड़ी बहन ले आए, वो भी नहीं है, खाला चाची फूफी कोई तो होगा, कोई बड़ा लेकर आओ, ताकि ये ना लगे कि यार ये लड़के आए और उन्होंने लड़कियों के नंबर ले लिए. समझ रहे हैं, इसको अवॉइड करने के लिए. एंड देन हर एक फैमिली के साथ एक हमारी तरफ से एक बंदा या बंदी हो जो उनको ले जाके इंट्रोड्यूस कराए. एंड देन यू नोट डाउन द नंबर, और फिर हम बाद में बोलें अच्छा जी ये इनकी डिटेल्स है, बाकी अल्लाह खैर सल्ला, हमारा काम मिलाना था. अब उसमें कोई स्कैमर निकले, उसमें कोई ड्रग ह्यूमन ट्रैफिकर निकले, अब उसमें कोई निकल जाए कि जी लड़की को रात का पेट काट के गुर्दे ही बेच दिए, तो भाई वो फिर तो अगले दिन सोशल मीडिया पे आपने मेरी तस्वीर लगा देनी है कि जी इनके इवेंट पे हुआ था. तो मैं ना, जहाँ जेन्युइनली मैं हेल्प कर भी सकता हूँ, मैं करता ही नहीं इस मुल्क में. उसकी वजह यह है कि हमारे लोग नेचुरली इतने क्रिमिनली इंक्लाइंड हैं,
और वो हर चीज़ में चोरी का आंसर, 2 नंबरी। कल मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी यूट्यूब में, कोई पता नहीं कौन सी ऐप है जिसमें लोन मिलता है, तो वो वीडियो है कि लोन लेके भागना कैसे है। ये चीज़ें सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। तो ये इतना क्रिमिनली इंक्लाइंड है, और यहाँ पे कोई चूंकि रिप्रिकॉशंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो भाई लोग डरते हैं अच्छा काम करने से। मेरे लिए, मुझे नहीं, इससे पैसे नहीं कमाने, नेक काम है, मतलब अगर किसी का घर बस जाए दुआई मिलेगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं अभी एक इवेंट अनाउंस करूँ जी, मोमिन पिक में 10 फरवरी को इवेंट है, आ जाए 500 कपल, 500 में से भाई 50 शादी भी हो जाओ सामा, अच्छी बात है कि नहीं है? मगर फिर वही होगा ना कि यार हम वो शादी करके वो जहेज लेके वो तो भाग गए, लड़की को बोला बेटा घर से ज़रा होके आओ, हमारे यहाँ रस्म है, लड़की एक दिन घर जाती है, अगले दिन के घर ही गायब, जेवर लेके कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोगों ने तो मेरी फ़ोटो लगा दी कि जी जुनैद साहब ने रिश्ता कराया था। तो भाई मैं इसीलिए बहुत सारे काम करता ही नहीं हूँ यहाँ पे, जो कि मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। शादी वाला एंगल। अब उस वाले दूसरे एंगल से हम जा नहीं सकते, वे जहाँ पे स्पीड डेटिंग एक कॉन्सेप्ट है। स्पीड डेटिंग में क्या होता है कि जी एक टेबल है और एक कुर्सी है, 2 कुर्सी हैं आमने सामने, ठीक है, और लेट से 50 टेबलें हैं इस तरह की, एक बहुत बड़ा हॉल है, एक्सपो सेंटर है, 100 है। अब उसमें लड़कियां बैठी हुई हैं और 3 मिनट हैं, और लड़के इस टेबल पे है, आए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, नंबर लिखा हुआ है, और कोई एक्सचेंज ऑफ फ़ोन नंबर्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक शैपरॉन बैठा हुआ है, मैं ये हूँ, दिस व्हाट आई डू, डरडा। अगर उनको समझ आए वो नोट डाउन कर ले कि हाँ ओके है, आई विल टेल द कंपनी लेटर ऑन कि मुझे ये कैंडिडेट समझ आया, आई लाइक टू टॉक टू देम। तो ये स्पीड डेटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जाता है, इस तरह लोग एक दूसरे से, दिस इज़ प्री टेंडर, प्री बम्बल, यही होता था। अब इसमें करें, आप बोलोगे आप तो कह रहे हो जी डेटिंग फैला रहे हो, फिर आप कल को उनको कमरे भी करा के दोगे, फिर आप कोई होटल भी ले लो साथ में कि जी ये कमरा है, यहाँ आके लवाजमात फरमा लें। तो भाई यहाँ पे अब ये चीज़ें कर ही नहीं सकते। अब आपका बिल्कुल पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली वैलिड, क्योंकि यार आप वही दोस्त होते हैं आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के, फिर हम कब तक उनकी शक्लें देखें, फिर ऑफिस की दोस्त, यू देर इज़ वो बिल्कुल आपने यू लाइक व्हाट यू रिटन दैट यू कम टू अ स्टैंड स्टिल, एंड दैट वाज एग्जैक्टली द केस इन माई लाइफ, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप, इट्स बिकॉज मेरे दोस्त ही ख़त्म हो गए थे। बस कॉलेज तक जो थे वो थे, ऑफिस वाले थे, फिर वो उनमें से आधे बाहर चले गए, मैं बैठा हूँ, मैंने नए दोस्त कहाँ से बनाऊँ? मैं चलो स्टैंड अप करता हूँ, ऑडियंस होगी, किसी से दोस्ती हो ही जाएगी, एंड दैट्स हाउ आई मेट डॉक्टर सोलंकी, ही केम टू वन ऑफ माई शोज, एंड दैट रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? अब ये तो मैं था ना, मर्द था, प्रिविलेज थी, मीन्स थे, तो हो गया, लड़की क्या करेगी? ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाउ डू यू फाइंड समवन। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है अमंग माई लेडी फ्रेंड्स हु हैड who were trying to find someone either willingly or unwillingly, एक ख्वाहिश तो होती है, once they turn 30, पेरेंट्स, अच्छा हाँ ठीक है तुमने जाना है ट्रिप पे जाओ, पहले तो आप जाने नहीं देती थी, या फिर अच्छा चलो कोई है तो बता दो, भाई जब था तब आपने बोला था, कदगने लगाई हुई थी कि नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि डेट करना है, ये करना है, हमारे यहाँ लव मैरिजेस नहीं होती। हर पेरेंट्स जो हैं, लाइक मोस्ट पेरेंट्स, 30 के बाद जो बेटियों को आज़ादी देता ना, अगर वो 22, 23, 24 में दे दें और संस्कार के साथ दे दें, तो शायद उनके लिए बहुत बेहतरी हो। मगर वो 30 तक कुछ नहीं करने देते, फिर 30 के बाद सब अलाउ हो जाता है, स्कर्दू जाना है जाओ, दुबई जाना है जाओ। यही चीज़ अगर वो 22, 23 या 24 में बोले कि मैं जेन्युइनली अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ पौड़ी हो रही है करने, नथिया गली जाना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर जब वो 33 की हो जाएगी, हाँ जाओ, इस होप में कि जाओ शायद ही कोई मिल जाए, कोई ले आना साथ में। अरे तो भाई जब वो जा सकती थी तब आपने उसको अलाउ नहीं किया। ये एक अजीब साइकी है देसी पेरेंट्स की, मुझे समझ नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि खुला डुल्ला छोड़ दो, लेकिन ये कि अगर आपने अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट की हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, अब ये बात कहाँ से कहाँ जाएगी। सो ये बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड ये प्रॉब्लम मुझे भी फील हुआ था, एंड इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। और शादी.com और बम्बल में अजीब क्रीचर्स घूम रहे हैं। आई एम श्योर अच्छे लोग भी होंगे, आई एम नॉट ऑन द ऐप, मगर ये कि उनका रेशियो बहुत कम है। सो या तो बंदा अपने आप को इतना एलिवेट करे, इतना सोशल हो, इवेंट्स पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में पैसे लगते हैं यार, और हर किसी के पास परमिशन नहीं होती, राइट? तो ये बड़ा मसला है। अब इस चीज़ में जो है ना, लाइक माइंडेड ग्रुप्स, अब सोशल मीडिया का दौर है, लाइक माइंडेड ग्रुप्स काफ़ी सारे होते हैं, पीपल एंड अप मीटिंग फ्रॉम देयर एज वेल, बट देन यार इट सोशल मीडिया इज़ अ बिग फसाड, एंड एज एन इंस्टाग्रामर आई एम टेलिंग यू, मैं खुद बता रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठ है इंस्टाग्राम।
इतना झूठ है यार आपकी सोच है। लोग ऊपर उधर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। कहीं दीन बेच रहे होते हैं, बाहर आके वो उनके काम ही उल्टे होते हैं। तो खैर वो एक अलग मसला है। सो आई डोंट नो व्हाट टू आंसर। आई मीन देयर आर सो मेनी सोल्यूशंस, बट फिर यहाँ पे पाकिस्तानियत आ जाती है और लोगों की गैरत आ जाती है। अब लोगों ने डिसाइड करना है कि जी हु यू गोना बैंग। ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, पीपल आर एक्चुअली डिसाइडिंग। तुम 24 की हो गई हो, चलो सेक्स कर लो अब तुम। हैं आंटी अगर आगे पूछ रही है तुम्हारी शादी नहीं हो रही, यानी तुम शादी कर लो, यही कह रही है ना। या अगर बच्चे नहीं हो रहे, आर यू नॉट बैंगिंग इनफ? रोज करो भाई, लग जाएगा शॉर्ट कहीं ना कहीं। पीपल आर डिसाइडिंग। जिस दिन लोगों के हाथ में पावर आ गई ना, एंड 40% के 80% मसले हमारे मुल्क के, मेरे इनबॉक्स में यही मसले हैं, तो यही रिफ्लेक्शन हमारे मुल्क की है और हमारी सोसाइटी की है। सबसे बड़ा मसला है लोग अलग नहीं रहते, साथ रहते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। नहीं बर्दाश्त होते लोग यार आजकल के दौर में। अलग रह लो, मगर वो ज़बरदस्ती ठूसा हुआ है, ठूसा हुआ है, ठूसा हुआ है, बनती है नहीं किसी की किसी से। अजीब यार। अब इसमें मेरे पास एक बड़ी मिसाल आई थी, मैं बोलूँगा तो मसले मसाइल हो जाएंगे। तो इसमें क्या करें? आई हैव एब्सोल्युटली नो सोल्यूशन। जो लोग सुन रहे हैं कमेंट में बताएं, हाउ डज अ 24-year-old यंग गर्ल इन लाहौर who studied, graduated, masters, whatever, how does she make new friends? And not only from the standpoint of finding someone or finding a soulmate, but genuine friends. कैसे करें? Right? और अगर soulmate भी हो तो why not? People opt for love marriages, एंड जितना रेशियो अरेंज मैरिजेस का फेल होने का है, लव मैरिजेस का भी है। देखो फेल कुछ भी हो सकता है, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है इस दुनिया में, राइट? तो मगर चांसेस बेहतर होते हैं। अरेंज में तो आपको पता ही नहीं है ना, आंखें बन की ये आ गया, अच्छा भाई कौन है तू, अबे ये तो गुटखा खाता है, मैं इसको किस कैसे करूँगी। अबे 10,000 मसले हैं यार अरेंज मैरिज में। लाइक सारी ज़िंदगी बोलते हैं डोंट हैव सेक्स विद अ स्ट्रेंजर, एंड देन फिर एक स्ट्रेंजर कमरे में आया था, वाओ, एंड नाउ यू हैव टू लिव विद दैट गाय और अ वुमन। दैट्स सो फक्ड अप मैन, सो मेस्ड अप। हमारी प्रॉब्लम्स, अब मसला ये है ना यार, कोई सोशल साइंटिस्ट तो है ही नहीं इस मुल्क में, होंगे भी तो पता नहीं कहाँ हैं, मैं तो नज़र नहीं आते। ये मसले हैं हमारी सोसाइटी के, एंड वन ऑफ द रीजन वाई वी आर वी आर एन अनहैप्पी नेशन इज़ बिकॉज वी आर अनहैप्पी हाउस होल्ड्स। हर घर में अनहैप्पीनेस है, टॉक्सिसिटी है। तो मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और ये रूट है प्रॉब्लम का, रूट पे नहीं जाना। इनको लगता है जी बेहरा रवि बढ़ रही है तो शादियां करा लो। उसका मतलब ये थोड़ी कि बेजोड़ शादियां करा लो। बेजोड़ शादियों से बेहरा रवि मजीद बढ़ती है, बिकॉज एक बार आपके मुंह को लग जाता है, एंड देन यू आर लाइक आई डोंट वाइब विद दिस पर्सन, मुझे तो कोई और मिलनी चाहिए, फिर वो इधर उधर जाता है। ऐसे बढ़ती है बेहरा रवि। जब प्रॉपर मैचेस होंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, हेल्दी हाउस होल्ड होगा, हेल्दी फैमिली यूनिट होगा, तो खुशहाली होगी। घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा या कम होगा। बच्चे जो है अनस्टेबल नहीं होंगे, और फिर वो अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी बच्चों की, इट टेक्स देम टूवर्ड्स ड्रग्स। सामने एंटी नारकोटिक्स का दफ्तर है और इस इलाके में बड़े बड़े स्कूल हैं। 17 साल का बच्चा तुम्हें कौन सी ड्रग है जो नहीं मंगा के दे सकता? अबे इतनी आम है, और बच्चे इतने डिस्टर्ब्ड हैं इस मुल्क में। वो घरों के माहौल है, वो स्केप ढूंढ रहे हैं, स्केप। और फिर ड्रग्स को फैशनेबल भी बनाया गया है। वो कौन सी सीरीज़ है, यूफोरिया, वो सब यूफोरिया चल रहा है आजकल, और हार्ड ड्रग्स कर रहे हैं। अबे हम कैप्स्टन पी के चौड़े चलते थे, कैप्स्टन पी है, अब तो आइस से नीचे बच्चे बात नहीं करते। अबे इतनी खतरनाक क्लास ए ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, बच्चे हैं यार 17 साल के। तो भाई ये गंदगी, ये बेहयाई है इस मुल्क में, मगर ये नज़र नहीं आती। बेहयाई तो औरतों की टांगों में होती है, बाकी सब तो ओके होता है। खैर भाई, टीचर को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, क्योंकि वो टीचर जो है उन्होंने नेशन बिल्डिंग करनी है, आपकी, आपके बच्चों की, और उनको हम बिल्कुल इंतज़ार नहीं करा सकते। तो एपिसोड को ये ख़त्म करते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/kanji swag। आपसे मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। हाफिज़ एंड हैप्पी न्यू ईयर।